So, welcome everyone. Today we'll see about how to format your presentation. So, this is a very important concept that how you should keep your presentation because you will be required to give your presentations many times. So, आप जैसे if you are going for a conference, then also you have to prepare a presentation. When you are going for DRC, then also you have to give presentation of your research work. So many times you will be required to give the presentations of your research work. So there are some very important concepts and points that we should all remember while we are presenting our work. So PowerPoint presentations, as I was discussing in the last class, that the entire presentation should be in the black and white format. Generally, it is preferred to keep black and white format. So white will be the background and black will be the text because uh, when you take printouts or handouts of your presentation, that then uh, it is more clear, it is more legible. एंड ऑल्सो जैसे आप डीआरसी कमेटी के सामने या आरडीसी कमेटी के सामने आरडीसी प्रेजेंटेशन अगर दे रहे हैं तो उसमें आपको जो है यू हैव टू गिव हैंडआउट्स टू द प्रेजेंट इवेलुएटर्स. सो आपको हैंडआउट्स प्रिंट आउट में देना पड़ता है. सो वहाँ पे भी आप जो है ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में रहने से क्या होता है कि कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं होगा, क्योंकि कलर्ड फॉर्मेट में कई बार क्या होता है कि आप कलर्ड प्रिंट आउट्स निकाल नहीं पाते हैं. सो इफ़ यू आर अनेबल टू प्रिंट इन कलर, देन कुछ कुछ ऐसे चीज़ें आपने जो कलर में बनाई होंगी वो ब्लैक एंड वाइट में ग्रे स्केल में दिखने लगता है. सो क्लियरिटी ख़त्म हो जाती है उसकी. So that is why it is recommended that the entire presentation should be in in black and white format. So as you are seeing here in that app, the title slide that I'm showing is the exact format that you can use. Also, the font also that I was discussing in the last class, that the font should be very clear. Uh, कई बार क्या होता है कुछ fonts में जो आई है और एल है, जैसे एक लेटर का एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे कई बार कुछ fonts में ऐसे रहते हैं कि आई लिखिए या एल लिखिए, वो सेम सिमिलर दिखते हैं. कैपिटल आई लिख रहे हैं या कैपिटल एल या स्मॉल एल लिख रहे हैं, दोनों एक जैसे दिखता है. सो ये थोड़ा सा इस टाइप के फॉन्ट को कभी यूज़ नहीं करेंगे. हमेशा जो है जनरली इट इज़ टाइम्स रोमन फॉन्ट विच इज़ क्वाइट इजीली रिकॉग्नाइजेबल, या बुक एंटिका करके भी होता है, बुकमैन एंटिका. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड फॉन्ट्स. वैसे आप चाहें तो अपने हिसाब से फॉन्ट्स को रख सकते हैं. डिस्कस विथ योर गाइड, the guides with the supervisors, so they will help you to make your presentation better. So एक common guidelines मैं देना चाहूँगा how to format your presentation. So let us see, uh, for a technical presentation you should set high goals for presenting presentation slides. So here so the slides should help the audience during the talk. So point is that ये जो है जो आपका स्लाइड्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ पे जो स्लाइड जो दिया हुआ है, जैसे परफ्यूजन इन द माइक्रोस्कोपिक फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू टिश्यू, इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे देयर आर पॉइंट्स विच आर गिवन एंड देयर इज अ डायग्राम, एंड दीज पॉइंट्स यू हैव टू एक्सप्लेन. So the slide should serve as notes for the audience after the talk, because whatever presentation you are giving, the audience, generally the audience is the evaluators who will evaluate your presentation and ask questions. So the slides should be such that those evaluators can write down some notes or points that they will ask at the end of the presentation. ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है कि व्हेन यू आर गिविंग द प्रेजेंटेशन, आफ्टर द प्रेजेंटेशन इज कंप्लीट, यू हैव टू गिव आंसर्स टू द क्वेश्चंस. तो एक लास्ट स्लाइड होता है हमेशा हमारे प्रेजेंटेशन में जिसमें क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस करके या एनी क्वेरीज करके हम लिखते हैं. दैट इज मैंडेटरी एक्चुअली, क्योंकि आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे. सो जो क्योंकि आप जो स्लाइड्स तैयार कर रहे हैं, नेचुरली यू विल बी प्रिपेयरिंग द कंटेंट ऑफ द स्लाइड्स, एंड यू विल बी नोइंग अबाउट ईच एंड एवरी स्लाइड.
and what the points are and what is the meaning of the points and explanation. तो पॉइंट वाइज आप जो स्लाइड्स में पुट अप कर रहे हैं, दोज पॉइंट्स शुड सर्व एज नोट्स फॉर द ऑडियंस बिकॉज दे विल डिस्कस दैट दोज पॉइंट्स लेटर. So so this is a kind of a thing that should be very clear, should not be jumbled. The points should not be jumbled. The point should be very very concise and clearly put, and you have to explain the points. सर एक क्वेश्चन था. हाँ जी बोलिए. सर अगर हम कोई डायग्राम इंसर्ट करते हैं जी तो हाँ, क्या वो भी ब्लैक एंड व्हाइट हो कि वो कलर्ड हो? वो कलर हो गया. अगर वो जैसे प्रेजेंटेशन में आप कलर दिखा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि जब उसका प्रिंट आउट निकलेगा ना, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में निकलता है, जनरली निकलता है. तो अगर ऐसा कुछ अगर आपने डायग्राम यूज किया जिसमें कलर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो तो उस कलर प्रिंट आउट पर्टिकुलर, ले लेंगे. हाँ उन पर्टिकुलर स्लाइड्स को आप कलर में निकालें. जो ओके आप ओके ठीक है. वो करेंगे अपने जो भी इवेलुएटर्स को जैसे देते हैं हम लोग, तो वो हाँ कलर्ड हाँ. वाले स्लाइड्स हम देते हैं, तो प्रिंट आउट्स. जनरली सर जो डीआरसी में कितने मेंबर होंगे जो हम लोग ये प्रिंट आउट बना के रखेंगे जो देंगे इनको फोटो से? डीआरसी में डिपेंड करता है. एक्चुअली क्या होता है कि एक तो आपके एक एक तो बाहर से जो भी आएंगे, एक या दो लोग तो रहते ही हैं, मिनिमम दो लोग तो रहते ही हैं. प्लस जो है वहाँ पे इन हाउस कुछ कैंडिडेट, कुछ जो है जैसे डीन एकेडमिक्स या इस टाइप से जो है कुछ रहेंगे लोग. तो वो काउंट अभी कहना मुश्किल है कितना काउंट होंगे, मतलब तीन चार लोग तो रहते ही हैं फॉर इवेलुएशन. ओके ओके सर. हाँ. देन नेक्स्ट जो है द प्रेजेंट दिस प्रेजेंटेशन focuses on two common errors made in the design of the slides. So here you can observe there are two very common problems that students encounter while presenting. एक्चुअली क्या होता है कि जो कंटेंट्स बनाया जाता है, उसको अगर हम बहुत ज़्यादा अगर क्लटरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लटरिंग कर देते हैं, एक तो पहला आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जो पहला जो आपका एक स्लाइड का एग्जांपल यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, द एंटायर कंटेंट इज क्वाइट क्लटर्ड. क्लटर्ड इन द सेंस इट इज डेंस, there is a lot of text. So this kind of a thing people do not read actually, and people lose interest. So if you are presenting your slides which are containing too much of text, then the interest will be lost and the point that you are going to present will be lost. तो उसमें क्या होगा कि इंटरेस्ट एक बार खत्म हो जाए ना, तो फिर इंटरेस्ट जगाना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. सो अगर इंटरेस्ट अगर चला जाए तो उसमें फिर उसमें मतलब जो इवेलुएटर्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स ढूंढने लगते हैं. तो आपको फिर दिक्कत बाद में क्या हो जाएगा, उसको जस्टिफाई करते करते जो है काफ़ी परेशानी होता है. तो एक तो एक क्लटरिंग नहीं होना चाहिए. दूसरा आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स एक ही स्लाइड में दे दिया है. इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ये पूरा जो है बहुत सारा जो है पॉइंट्स इसमें दिया हुआ है. खैर ये तो प्रेजेंटेशन आउटलाइन है, इसमें तो रहता ही है, लेकिन बाकी के स्लाइड्स में वैसे खूब सारे पॉइंट्स अगर आप एक ही स्लाइड में इंक्लूड करते हैं तो इट इज़ नॉट मेमोरेबल. सो इसमें क्या होता है कि अगेन दिस ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ अटेंशन. सो हमको ऐसा करना है अपने हमारे प्रेजेंटेशन को कि उसमें पॉइंट्स जो हैं वो मिनिमम रहें और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहें, या तो पॉइंट्स ऐसे रहें जिसको हम डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएँ. हमारे पास रिटर्न मैटर होना चाहिए उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम पॉइंट्स देख लेते हैं लेकिन क्रिएटिवली कुछ बोलना चाहते हैं तो कुछ गलत बोल देते हैं. तो वहाँ पे थोड़ा हमको ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज़ ए काइंड ऑफ ए academic presentation, so the content should be very much clear to us. So we should prepare the paragraphs that we are going to explain while displaying the points. तो पॉइंट्स का डिस्प्ले करना जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए. और उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक रिटर्न मैटर होना चाहिए जिसको हम पढ़ के सुना सकते हैं, या तो याद रखे हो तो याद करके बता सकते हैं. ठीक. सो इट इज़ इसमें जो है कोई गलत नहीं है. अगर आप आपके पास आपने कुछ हैंडआउट्स रखे हैं और उसको आप पढ़ के सुना रहे हैं, दैट इज़ क्वाइट फाइन. लेकिन जो है जो इंटेंट जो होता है उस पूरे कंटेंट का, दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड. क्योंकि अचानक से क्वेश्चन अगर पूछते हैं आपके बोलने के बीच में, तो आपको तुरंत उसका आंसर भी करना पड़ेगा. सो एक प्रिपरेशन जो होता है वो काफ़ी एक्टिव होना चाहिए इसमें. सो टू मच क्लटरिंग इज़ नॉट
desirable, and also too much number of points are also not desirable. तो हमको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, सो दैट इट इज रिमेम्बरेबल एक्चुअली, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सेशन में ये डिस्कस किया जाता है पॉइंट्स को। और एक चीज ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, रीडर्स जो वहाँ बैठे इवैल्यूएटर्स अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब उनको आपका प्रेजेंटेशन समझ में ठीक से नहीं आया है। तो अगर प्रेजेंटेशन ठीक से समझ में आया है तो डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सो इफ यू आर गेटिंग क्वेश्चंस, दैट मीन्स इट इज गुड, it's a good indication that people have taken interest in your presentation and they are asking questions. So it is a very good indication. So one common error is having a slide format that dissuades the audience from reading, because too much cluttering is difficult to read. Too many points are not good. To writing paragraphs in a single slide is not. Paragraph writing तो करना ही नहीं, कभी भी पैराग्राफ राइटिंग करना ही नहीं है स्लाइड्स के ऊपर। पैराग्राफ जो है आप अपने प्रिंट आउट्स के लिए रखें, जिसको आप पढ़ के आप बता सकते हैं, लेकिन उन पैराग्राफ के जो मेन पॉइंट्स हैं वो सिर्फ स्लाइड में दिखने चाहिए। तो स्लाइड बहुत क्लीन एंड क्लियर दिखना चाहिए, विदाउट टू मच ऑफ टेक्स्ट। बहुत ज़्यादा टेक्स्ट या पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ्स जो है नहीं दिखने चाहिए आपके स्लाइड। तो नाउ यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे दिस स्लाइड में कुछ जो है एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनको हमको करना नहीं है। जैसे कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे यहाँ पे जैसे चूज लेजिबल टाइप, जैसे अभी मैंने कहा कि ऐसा टेक्स्ट टाइप जो फॉन्ट टाइप है उसको चूज करना है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ कुछ फॉन्ट्स में ऐसा होता है कि अगर आप कैपिटल आई लिख रहे हैं और स्मॉल एल लिख रहे हैं, वो सेम दिखता है। तो इस टाइप के जो है आपको फॉन्ट्स चूज नहीं करना है, और फॉन्ट जो है वो शुड बी क्लियर एंड शुड नॉट बी क्या बोलते हैं, डेकोरेटिव फॉन्ट्स यूज नहीं करना है। वी शुड नेवर यूज डेकोरेटिव फॉन्ट्स इन अवर एकेडमिक प्रेजेंटेशन। तो डेकोरेटिव फॉन्ट्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, वो जो है इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। सो जैसे एग्जांपल में आपने यहाँ पे दिया है कि दिस जो है सैंस सेरिफ टाइप जो है या एरियल टाइप जो होता है इज क्वाइट गुड, चलता है। लेकिन ये जो जैसे इटैलिक्स में दिया हुआ है, कैपिटल्स में सब कुछ दिखा हुआ है, सेरिफ टाइप्स फेस जो लिखा है पूरा कैपिटल्स में लिखा है, सो दिस इज नॉट ए गुड टाइप ऑफ ए फॉन्ट दैट वी शुड यूज। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है सेंटेंस केस वाले चीज़ों को यूज करना है, पूरा हर चीज कैपिटल केस में रहे तो ठीक नहीं होता है। क्योंकि उसमें फिर क्या होगा कि आप एक तो क्या इसमें जो ऑटोमेटिक एरर डिटेक्शन वाला जो पार्ट होता है वो कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए वर्ड्स को वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन सेंटेंस केस में अगर आपने लिखा है दैट इज स्टार्टिंग लेटर इज कैपिटल एंड अदर लेटर्स आर स्मॉल, या स्मॉल केस में पूरा अगर लिखा है, तो उसमें जो है वो जो एरर है वर्ड में, अगर कोई एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो तुरंत आपको बता देगा एमएस वर्ड या एमएस पावर पॉइंट। तो इसलिए लिखते वक्त ध्यान रखना है कि हमको जो है अपना जो जो फॉन्ट टाइप है उसको बहुत वाइजली चॉइस करना है। ठीक, और कलर जो है, कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कलर जो है इट क्रिएट्स अ इम्प्रेशन। सो जैसे ब्लैक एंड वाइट इज बेस्ट कलर है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डार्क बैकग्राउंड रख के वाइट उसके में कलर्स में लिख सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको प्रिंट आउट निकालने में दिक्कत हो जाएगा। तो खैर वो आप मैनेज, आपको इमेजिन करना पड़ेगा मैनेज करने के लिए। ठीक, एंड ऑल्सो जैसे जो लेआउट है उसको भी प्रॉपरली आपको चॉइस करना है। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है जो डायग्राम है, डायग्राम के राइट साइड में कुछ आपने वर्ड्स लिखे हैं, फिर एक डायग्राम बनाया, फिर उसके लेफ्ट साइड में वर्ड्स लिख रहे हैं। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इट इज नॉट वेरी मच हेल्पफुल, ये कुछ अच्छा अरेंजमेंट नहीं है। जनरली डायग्राम के नीचे अगर वर्ड्स रहें तो दैट इज बेस्ट। तो क्योंकि क्या होता है कि अगर आप डायग्राम के चारों तरफ वर्ड्स लिखते हैं तो एक तो आपका डायग्राम छोटा हो जाएगा, तो अगर डायग्राम आपका छोटा हो गया उसका क्लियरिटी कम हो जाएगी। सो इफ इट इज नॉट क्लियर देन यू वोंट बी एबल टू जस्टिफाई योर आइडिया, बिकॉज दैट डायग्राम हैज टू बी वेरी मच क्लियर टू द ऑडियंस। So the audience should be able to understand what each and every part of the diagram, each and every part of the components of the diagram. So diagram जो है वो बड़े साइज में होना चाहिए when you are creating a presentation, and उसमें जो explanation वाले words हैं उसके नीचे होने चाहिए। So this is a very best kind of a layout
that is on the top there is diagram, and below the diagram there is, or the figure, below the figure there is the explanation of the figure. So this is the ideal layout. That is one of the best ways to represent. The diagram is above the words. ठीक? So this is one of the best ways of representing the diagrams and words in your presentation. Then slide background and readability is also very important. जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि आप जो है लाइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क में लिख सकते हैं, दैट इज गुड. डार्क बैकग्राउंड के ऊपर जो है लाइट पे लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो टॉलरेबल, दैट इज ऑल्सो गुड. लेकिन डार्क बैकग्राउंड में डार्क से लिखे हैं, जैसे यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड एंड डार्क प्रिंट, ये गलत है. इससे क्या होगा कि क्लैरिटी खत्म हो जाएगी. तो जो कलर है वो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का कलर जो है वो सिमिलर नहीं होना चाहिए. या जैसे यहाँ पे भी लाइट बैकग्राउंड और लाइट कलर में आप लिख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. तो हमेशा ध्यान में जनरली हम लोग क्या रखते हैं कि जो रिटन मैटर होता है वो डार्क में होता है, और बैकग्राउंड जो होता है वो वाइट मतलब लाइट में होता है. सो कीप द बैकग्राउंड लाइट एंड कीप द कंटेंट और द टेक्स्ट डार्क. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. वो कभी कभी हम मिस कर जाते हैं. जैसे हम कई बार प्रेजेंटेशंस में जैसे मैं बैठता हूँ तो आई ऑब्जर्व दैट द कंटेंट जो है वो लिखा तो है, लेकिन बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का जो चीज़ें हैं वो मिस कर गया. उससे क्या हो रहा है कि जैसे कई लोग जो है कुछ अलग कलर में हाईलाइट करने की कोशिश करने के लिए कुछ अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, और वो कलर जो है वो बैकग्राउंड के साथ एकदम मैश कर जाता है, पूरा जो है मिक्स हो जाता है. तो उससे हमको पता ही नहीं चलता वो क्या कहना चाहते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसिडरेशन है while we are creating the slides for our research proposals or presentations. Then graphs and figures, ये बहुत ही important चीज होता है in your presentation. आपके presentation में graphs and figures होना ही चाहिए, क्योंकि that makes the entire presentation very attractive. ठीक. इसको बोलते हैं ना कि जो images होते हैं they are they represent a lot of text. They can be replaced. That lot of text can be replaced by single figures. क्योंकि क्या है कि जैसे आप कभी भी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे अपने जैसे जिसको हम कहते हैं एकेडमिक पर्पस के लिए, तो जैसे टीआरसी या आरडीसी के समय मैक्सिमम आपको 15 मिनट्स मिलेगा, 10 to 15 मिनट्स मिलता है. द रीजन इज वेरी सिंपल, दैट इफ योर प्रेजेंटेशन इज बियॉन्ड 20-30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. एक्चुअली पेशेंस खत्म हो जाता है. देखने वाले का पेशेंस, समझने वाले का पेशेंस जो है वो खत्म होने लगता है. तो उससे क्या होता है, जो इंटरेस्ट खत्म होने के कारण आप जितना इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पाता है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू create your presentations which are having slides in the range of 20 to 25 slides only. 20 to 25 स्लाइड्स होने से आपका प्रेजेंटेशन जो है 15 से 20 मिनट का बन जाता है. कारण क्या है कि जैसे आप एक स्लाइड ओपन करें, उसमें अगर एक डायग्राम दे देते हैं और उस डायग्राम के बारे में समझाना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे वर्ड्स आपके जो है वो एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं. आपको टाइप करके दिखाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स में दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम से ही या फिगर से ही या ग्राफ से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दैट सेव्स टाइम as well as you are able to explain each and everything in details. इससे क्या होता है, इंटरेस्ट बना रहता है देखने वाले का, एंड द पर्सन रिमेंबर्स. अब जो डायग्राम्स में क्या होता है, एक बहुत खासियत क्या है, हम सभी ह्यूमन नेचर है, टेंडेंसी है दैट वी रिमेंबर डायग्राम्स वेरी इजीली, वी रिमेंबर इमेजेस वेरी इजीली रादर देन टेक्स्ट. सो इमेजेस हो गया या एनिमेशन हो गए, ये वीडियो हो गया, ये सब चीज़ें जो है रिमेंबर ज़्यादा करते हैं हम लोग. हमारा ब्रेन ही वैसा बना हुआ है. जो बहुत सारा टेक्स्ट होता है उसको हम लोग उतना ज़्यादा रिमेंबर नहीं कर पाते हैं, वो तुरंत हमारे दिमाग में फिट नहीं होता. लेकिन इमेज अगर आप डाल दें तो दिमाग में तुरंत फिट हो जाता है. तो हमको वही करना है कि हमारे जो इवेल्युएटर्स हैं उनमें इंटरेस्ट बनाए रखना है, और हमको जो कहना है वो एकदम क्लियर कट उनको समझ में आ जाना चाहिए. मतलब वी शुड बी द इवेल्युएटर्स शुड बी इन द सेम पेज दैट वी आर. तो हम जिस एंगल पे बात कर रहे हैं या जिस चीज को सोच के हम बात कर रहे हैं, वही सोच हमको अपने जो इवेल्युएटर्स के अंदर क्रिएट करना पड़ता है. तो हमारे इवेल्युएटर्स को हमारे अंडरस्टैंडिंग के साथ अलाइन करने के लिए हम अगर ग्राफ्स और फिगर्स का हेल्प लें
तो ये बहुत अट्रैक्टिव होता है और ये लॉन्ग टेक्स्ट को अवॉइड करने में हेल्प करता है और आप एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर पाते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि यू आर एक्सप्लेनिंग बेटर, सो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बता पाते हैं और इंटरेस्ट क्रिएट करके रख सकते हैं। तो लिसनर जो होता है वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेके सुनता रहेगा आपको और जो है इट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो जनरली क्या होता है, अगर आप बहुत सारे टेबल्स, आप जैसे टेबल्स आर डिफिकल्ट टू रीड है, represent data graphically whenever possible. So if you are going to represent some data, put them in the form of graphs. ग्राफ के फॉर्मेट में उसको पुटअप करिए, आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आसानी से आप समझा पाएंगे। अगर आप सिर्फ टेबल्स डाल देते हैं, इफ यू पुट अ लॉट ऑफ टेबल्स, वो टेबल्स को आपको समझाते समझाते दिक्कत हो जाएगा, उस टेबल्स को समझने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि टेबल जो आप बना रहे हैं वो आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बनाया है, आपने उसमें जो है कई महीनों में तक काम किया है, कई साल, जैसे 4 साल होने के बाद जब आप फाइनल प्रेजेंटेशन देंगे तो आपके 4 साल का उसमें काम है। तो यू नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द टेबल एंड डेटा प्रेजेंटेड इन द टेबल, बट द पर्सन हु इज सीइंग योर प्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, the external evaluator, he is seeing the presentation for the first time, so that person will not be able to understand whatever you are saying only by looking at the table data. So सबसे अच्छा क्या होता है, आप convert your table data into ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दीजिए। ग्राफिकली कोई भी चीज़ आप समझाएंगे तो बहुत जो है कम वर्ड्स में और बहुत अच्छे से चीज़ों को आप समझा पाएंगे, रादर देन डिस्प्लेइंग टेबल्स। जनरली हम क्या करते हैं, हम टेबल्स को भी डिस्प्ले करते हैं, ऐसा नहीं है कि टेबल्स डिस्प्ले नहीं करते हैं, टेबल्स को डिस्प्ले करके उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद फिर तुरंत उसको ग्राफ वाले स्लाइड में लेके जाते हैं, उसी टेबल का एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ वाले स्लाइड को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फिर जो है इससे क्या होता है कि द इवैल्यूएटर कैन अंडरस्टैंड व्हाट देयर योर पॉइंट ऑफ। So the simple fact is that a photograph is often worth 1,000 words. So the photograph will explain by itself what you are trying to present. So ये important है, इसको याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं डालना है, जितना हो सके ग्राफ्स एंड फिगर्स यूज करना है। इट्स ए वेरी बेसिक आउटलाइन और ए अंडरस्टैंडिंग फॉर क्रिएटिंग योर प्रेजेंटेशंस। ठीक, सो नेक्स्ट जो है आई वांट टू टेल सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द सेंटेंस हेडलाइन सपोर्ट इन बॉडी। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, द सेंटेंस हेडलाइन succinctly states the main assertion of the slide. So the sentence headline means the title of the slide, जो भी आप स्लाइड पुट अप किए हैं उसका टाइटल जो है शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक, जैसे हम लोग जो जैसे कोई स्लाइड ले रहे हैं, जैसे एक स्लाइड अपन ने लिखा है लिटरेचर रिव्यू, सो लिटरेचर रिव्यू सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट यू आर गोइंग टू नाउ प्रेजेंट द लिटरेचर रिव्यू इन दैट पर्टिकुलर स्लाइड। सो इस टाइप से जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो आप डायग्राम से प्रेजेंट कर दीजिए, डायग्राम के ऊपर आपका टाइटल होना चाहिए, डायग्राम का खुद का एक लेबल होना चाहिए और डायग्राम के जो है पार्ट्स को आप लेबल कर दें प्रॉपरली। जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कंप्रेसर, कंबस्टर, टरबाइन लिखा हुआ है। सो जो आपके रिसर्च को सपोर्ट करता है, जो आपके रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, चीज़ें आपके जो रिसर्च से एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है, उनको आप अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दीजिए, सो दैट विल हेल्प यू टू एक्सप्लेन योरसेल्फ बेटर। ठीक, सो जैसे जैसे अभी ने कहा कि इमेजेस आपको देना चाहिए, इमेजेस देने से इट इज़ बेटर, इट इज़ गुड एंड इज़ ए वेरी गुड प्रैक्टिस। लेकिन इमेज सिर्फ देने से नहीं चलेगा, इमेज को प्रॉपरली लेबल करना है एंड जो उसके कंपोनेंट्स हैं आपकी इमेज के, जैसे अगर आप कोई मॉडल दिखा रहे हैं तो मॉडल के जो कंपोनेंट्स हैं, या आप कोई जैसे एक पर्टिकुलर कोई इमेज आप दिखा रहे हैं, उसका जो लेबलिंग है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, उसके कंपोनेंट्स और उसके पार्ट्स का लेबलिंग जो है दैट शुड बी क्लियर एंड शुड बी वेरी मच अंडरस्टैंडेबल इन ए वेरी इजी वे। उसके ऊपर फिर आप उसको एक्सप्लेनेशन देंगे, तो दैट विल हेल्प द पर्सन्स टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, so the point is now that you should make we have to make our slides memorable. So whatever slides we are going to create should create an impact in the minds of the evaluator. So how memorable is the design? Whatever you are representing, that particular design, it should be
मेमोरेबल इन द सेंस इट शुड बी सिंपल, क्वाइट सिंपल। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, करना है कि यहाँ पे जो है एक डिजाइन बताया गया है। ये डिजाइन जो है वो फिलेट ऑन सी वुल्फ सबमरीन जो है, ठीक, फिलेट ऑन द सी वुल्फ सबमरीन लिया हुआ है। ये जो फिलेट लिया हुआ है यहाँ पे, जैसे मैं जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आई एम पुटिंग माई कर्सर हियर, माउस पॉइंटर, तो फिलेट लिखा हुआ है। फिलेट जो है वो क्या है, कैसे दिखता है, उसके लिए हम क्या एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम यहाँ पे दिखा दिए हैं। शार्क का जो फिलेट है उसको दिखा रहे हैं। सो दिस इज द फिलेट। सो एग्जैक्टली इसी डिजाइन पे हमने ये फिलेट को क्रिएट किया है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा जो प्रपोज डिजाइन है उसको रिप्रेजेंट करता हुआ कुछ रियल वर्ल्ड कुछ एंटिटीज को हम दिखा देते हैं। उससे क्या होता है, रिलेट कोरिलेट करना बहुत इजी हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा कि फिलेट का डिजाइन कैसे दिखने में होगा। आप जैसे ही इसको दिखा देंगे कि जो है वो फिलेट ऐसा दिखता है, तो डॉर्सल फिन ऑफ द शार्क जो है वो उसको वो हमारा फिलेट का डिजाइन होगा। तो इससे आप अगर जैसे बता देंगे तो इमिडिएटली जो जो देखने वाले हैं तुरंत आप समझ जाएंगे कि आपका फिलेट का डिजाइन कैसे होगा। सो हम इस टाइप से जो है हमारे स्लाइड्स को बनाते हैं। ये दिस काइंड ऑफ एन एक्टिविटी हेल्प्स टू रिमेंबर द स्लाइड कंटेंट्स, ठीक। सो ये जो डिजाइन हम जैसे रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो हम डिजाइन बता रहे हैं, उसको अगर हम किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी से कोरिलेट कर दें तो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि वो उस स्लाइड के बारे में उस इवेल्युएटर को याद रहेगा कि आपने उसको जो है ऐसा रिप्रेजेंट किया था। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, आप उसको बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं, ठीक। तो मेन चीज क्या है कि हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा जैसे डिजाइन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस डिजाइन का जो इंटेंट है, उस डिजाइन का जो मीनिंग है, वो हमको बहुत आसानी से सबको समझा देना है। बिकॉज हम तो उसमें कई महीनों से कई साल से काम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला उसको फर्स्ट टाइम देख रहा है। तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देना, जिससे कि वो उसको याद रख सके ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, ठीक। So we have to understand how memorable is the design, how many slides does the design require, does the design help the slides stand as notes, how effective is the design in an argument. So ये सब points को ध्यान रखते हुए हमको अपने slides को create करना है, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे फिलेट के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल है, जिसमें कि उसका कैपेबिलिटी बताया जा रहा है। फिलेट के कैपेबिलिटी को बताया जा रहा है कि फिलेट अगर रहता है सबमरीन के ऊपर, उस फिलेट के कारण उसका फायदा क्या है, ठीक। सो यहाँ पे जो है फिलेट के बारे में हम क्या बता रहे हैं, अब उसको आप कंपेयर कर रहे हैं कि शार्क के ऊपर जो डॉर्सल फिन होता है, जो उसका डॉर्सल फिन होता है, उससे क्या होता है, वो बहुत आसानी से इट कैन कट थ्रू द वाटर। तो वाटर का प्रेशर को जो है वो रिड्यूस कर देता है बहुत ज़्यादा, और उससे क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो फिलेट के कारण क्या, जो हम उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने सबमरीन का फिलेट में। तो फिलेट जो सबमरीन जो फिलेट होता है वो क्या कर रहा है, it is reducing the water pressure and it is helping to break the water pressure so that the speed of the submarine can be maintained. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन कंसिडरेशन है। तो इसके बारे में जो है, जैसे अभी मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर आपके भी रिसर्च में ऐसा कुछ होगा, जैसे आप करेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको आपको खुद को समझ में आएगा कि आपके रिसर्च में ऐसे एक या दो या तीन या चार ऐसे कुछ मेन पॉइंट्स होंगे जो आपके रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो उसके बारे में आप जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू जरूर बताएं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे डॉर्सल फिन ऑफ द शार्क का एग्जाम्पल लेके बताया गया है, तो वैसे ही आप जो है अपने रिसर्च में जो है आपके पॉइंट्स होंगे, दो या तीन या चार ऐसे कुछ मेन पॉइंट्स होंगे जिन जो स्ट्रेंथ है आपके रिसर्च के, उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू रिप्रेजेंट करें यूजिंग डायग्राम्स। तो बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है, बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। और जो है द व्यूअर्स इजीली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ठीक। अब यहाँ पे जैसे उसी बारे में डिस्कशन है कि हेडलाइन जो होता है, आपको एक जो शुड गिव अ स्ट्रॉन्ग हेडलाइन, identify the strong headline identifies the purpose of the slide, so the audience can understand the meaning of that particular slide, कि उस slide में उसको क्या expect करना है। The user the evaluators will understand what they expect from that particular slide.
सो हेडलाइन से ये चीज जो है समझ में आनी चाहिए, हेडलाइन शुड बी कंसाइज एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, एंड द पर्पस शुड बी क्लियर विद द हेडलाइन। तो हेडलाइन जो है वो पर्पस के साथ बिल्कुल मैच होना चाहिए, ठीक। अब जैसे नेक्स्ट जो होता है, हम रिजल्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होता है हमारे प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम रिजल्ट्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, रिजल्ट्स को भी यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक। रिजल्ट्स को भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है विद कलर्स। अब यहाँ पे जो कलर्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व करेंगे, कलर्स का इंपॉर्टेंट काम है कि यहाँ पे जो है दो एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। विदाउट फिलेट में क्या फर्क पड़ रहा है और विथ फिलेट में क्या फर्क पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे एक डिजाइन में फर्क है। तो आप हमको क्या करना पड़ता है कि जब हम अपने रिजल्ट्स को दिखाते हैं, तो हम प्रीवियसली परफॉर्म्ड जो जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, और हमने जो परफॉर्म किया है एक्टिविटी, उससे जो हमारा जो प्रपोज्ड मॉडल है, उससे जो हमको रिजल्ट्स मिल रहा है, उनको कंपेयर करते हैं हम लोग। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग हियर, यहाँ पे एग्जांपल में विथ फिलेट एंड विदाउट फिलेट का कंपैरिजन दिया है। So this is the exact comparison we also have to put in our research presentation, कि हमने जो एक्टिविटी किया है रिसर्च में, उसके कारण जो हमको आउटपुट मिल रहा है, जो compared to the activity that was performed earlier by other researchers, उनका जो आउटपुट मिल रहा है, हमारे और उनके आउटपुट के परफॉर्मेंस मेजर्स हमको दिखाने हैं। तो यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, परफॉर्मेंस मेजर। यहाँ पे देखिए क्वांटिफाइबली इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, न्यूमेरिक एक स्केल दिया हुआ है, न्यूमेरिक स्केल के बेसिस पे यहाँ पे कलर्स दिए हैं, उसके बेसिस पे जो है हम उसको बता रहे हैं कि इसमें कितना जो है वो फ्रिक्शन और कितना उसमें जो है उसकी एफिशिएंसी है। तो वैसे ही हमको भी अपने रिजल्ट, अपने जो रिसर्च का रिजल्ट है, उसको टैबलेट करके उसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाना है और कंपैरिजन करना है, कि कंपैरेटिव टेबल दिखाना और कंपैरेटिव डायग्राम्स दिखाना बहुत जरूरी होता है, ग्राफ्स के थ्रू बताना बहुत ही जरूरी है। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड हैज टू बी इंक्लूडेड। अगर वो मिसिंग हो जाए तो इनकम्प्लीट हो जाता है पूरा आपका प्रेजेंटेशन। सो रिजल्ट्स हैव टू बी कंपेयर्ड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिजल्ट्स हैं और हमने जो अचीव किया रिजल्ट्स, उनमें कंपैरिजन दिखाना ही है। वही एक स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स होते हैं हमारे प्रेजेंटेशंस में, ठीक। तो ये हम लोग ने ये जो आप देख रहे हैं कि एक डायग्राम दिया है, डायग्राम जो इमेज दिया है, इमेज का जो जो उसमें, जैसे मैंने कहा था कि उसमें उसका लेबलिंग प्रॉपर होना चाहिए, उसकी हेडलाइन प्रॉपर होनी चाहिए, और जो फॉन्ट है उसको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। दैट इज डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ठीक। अब जैसे मैंने अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कंपैरिजन होना चाहिए। सो देयर शुड बी कंपैरेटिव डायग्राम्स, जो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में कंपैरेटिव में हम लोग किया विदाउट फिलेट और विथ फिलेट का जो है ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन किया है। ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हम बहुत आसानी से अपने पॉइंट्स को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। देन दिस वी हैव डिस्कस दैट टू मेनी वर्ड्स आर नॉट गुड। जैसे अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, पूरा पैराग्राफ राइटिंग किया है, इट इज नॉट गुड एट ऑल। पैराग्राफ राइटिंग बिल्कुल नहीं करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, टेबुलेटेड फॉर्म में लिखिए, ज़्यादा बेटर है। ग्राफिकल फॉर्म में दिखाइए, वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाइए, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। एंड दिस काइंड ऑफ ए थिंग इज ऑल्सो नॉट गुड। आपने इमेजेस तो डाल दिए, अब ये जैसे फॉर एग्जांपल इमेजेस डाला हुआ है, लेकिन इमेजेस इतने ज्यादा डाल दिए एक ही स्लाइड के अंदर, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप का अगर आपका प्रेजेंटेशन है जिसमें बहुत सारे इमेजेस एक ही स्लाइड में है, तो भी गलत है। इमेजेस तो हेल्प कर रहे हैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताने के लिए, लेकिन इफ देयर आर टू मच इमेजेस देन आल्सो इट इज क्लटर्ड। तो किसी भी तरीके से क्लटरिंग होना नहीं है, स्लाइड्स में क्लटरिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दैट लूजेस, दैट क्रिएट्स अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। एंड यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया कि पॉइंट्स बहुत सारे, अगर बहुत सारे ज्यादा पॉइंट्स आप अगर स्लाइड्स में डाल दें, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। देयर कंसाइज जो है, लेस नंबर ऑफ पॉइंट्स शुड बी देयर एंड द एक्सप्लेनेशन शुड बी फ्रॉम योर ओन इमेजिनेशन और शुड बी रिटन मैटर विथ यू, जो आप रीड करके बताएंगे। और अब टू मेक द स्लाइड्स मेमोरेबल, एक और तरीका है, जैसे कि अभी मैंने हम लोग डिस्कस किए थे कि इमेजेस यूज करें, ठीक। सो इमेजेस में, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज है,
ये जो बताया गया है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक जगह लिखा है कंबस्शन मेथड्स, एक जगह लिखा है पोस्ट कंबस्शन मेथड्स, एक जगह लिखा है प्री कंबस्शन मेथड्स। अब ये सिर्फ 3 लेबल्स लिए हैं, बाकी इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके लेबलिंग किए हुए नहीं है। तो इसका भी पर्पस होता है। हर स्लाइड में आप चाहें तो, जैसे फॉर एग्जांपल आप 2-3 स्लाइड यूज कर रहे हैं जिसमें सेम इमेज है, लेकिन उसके जो उसकी जो डिटेलिंग है वो अलग अलग स्लाइड में अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू एक्सप्लेन। ठीक। सो एक ही इमेज को हो सकता है आप 3 स्लाइड्स में यूज कर रहे होंगे कंजिक्यूटिवली, यू आर यूजिंग द सेम इमेज इन 3 स्लाइड्स, बट द डिटेलिंग ऑफ द इमेजेस आर डिफरेंट इन ऑल द 3 स्लाइड्स, बिकॉज in slide 1 you want to explain something, in slide 2 you want to explain some other thing, in slide 3 you want to explain some other thing about the same image or same figure that you are explaining। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एक बहुत इंटेलिजेंटली करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक ही स्लाइड में पूरे आपने उसमें वो लेबलिंग कर दिया, पूरा क्लटरिंग हो गया, उसके बाद फिर एक एक करके आप समझा रहे हैं, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड द इमेज इज देयर बट इट इज टू मच फिल्ड अप विथ लेबल्स। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेबलिंग भी जो करना है वो सिलेक्टिवली करना है, बहुत ज्यादा लेबलिंग भी नहीं करना है, लेकिन लेबलिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना लेबलिंग के आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी इमेज में। तो फिगर देना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें लेबलिंग भी नहीं करना है, बैलेंस में करना है। अगर बहुत ज्यादा लेबलिंग है तो उसको अलग अलग स्लाइड्स में डिवाइड कर दें एंड उसको उसके लेवल वाइज जो है उसकी लेबलिंग करें, और एक्सप्लेनेशन भी लेवल लेवल वाइज करना है। So you should know what to include and what to exclude in the labeling of the images। अब रिजल्ट जो है, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे इमेजेस और जो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मिक्सचर है, इसको यूज करके भी आप अपने रिजल्ट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं, कंपैरेटिवली डिस्प्ले करा सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ठीक। सो एक और चीज इसमें आप कर सकते हैं व्हेन यू आर क्रिएटिंग द स्लाइड्स, क्योंकि यू माइट बी इन्वॉल्व इन प्रेजेंटिंग द स्लाइड्स, यू माइट नॉट बी रिमेम्बरिंग दैट हम जो है एंड ऑफ द स्लाइड आ गए हैं या एंड ऑफ द सेक्शन में आ गए हैं, अब नया सेक्शन शुरू होने वाला है। तो उससे क्या हो रहा है कि एक फ्लो में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो उसमें एक बहुत आसान सा तरीका उसका ये है कि कुछ आप जो है स्पेसिफिक इंडिकेटर्स यूज करें। जैसे आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में या बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में या टॉप राइट कॉर्नर में या बॉटम राइट कॉर्नर में कुछ ऐसे इमेज यूज कर लीजिए दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट ये अभी पर्टिकुलर जो जो सेक्शन चल रहा है वो एंड होने वाला है, नया सेक्शन शुरू होने वाला है। तो वो उस पर्टिकुलर स्लाइड में आप डाल दीजिए, नीचे में जैसे स्टार सिंबल डाल दीजिए या एक छोटा सा इमेज डाल दीजिए जो आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो एक सीक्रेट, जैसे बोलते हैं, एक सीक्रेट सा सिंबल डाल दीजिए जिसको आप समझ पा रहे हैं कि अभी जो मेरा सेक्शन खत्म होने वाला है, नेक्स्ट सेक्शन शुरू होने वाला है। सो यू विल बी प्रिपेयर्ड दैट यू कैन कंक्लूड दैट पर्टिकुलर सेक्शन प्रॉपरली। ये तो क्या होता है कि आप दूसरे स्लाइड में पहुंच गए, फिर बोले अरे दूसरा सेक्शन चालू हो गया, फिर वापस अपने प्रीवियस स्लाइड में आते हैं, फिर समझाते हैं कि भाई ये सेक्शन मेरा एंड हो रहा है। तो ये एब्रप्टली जो है मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आपको मतलब जो जो इवेलुएटर है उसको लगना चाहिए कि यू आर क्वाइट वेल वर्स विद द एंटायर फ्लो ऑफ द स्लाइड्स। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, लास्ट जैसे एक सेक्शन खत्म हो रहा है तो उसके लास्ट में एक छोटा सा इमेज, चाहे लेफ्ट कॉर्नर हो राइट कॉर्नर हो, कहीं पे भी आप जो है एक छोटा सा इमेज या एक इंडिकेटर लगा दीजिए, जैसे स्टार सिंबल लगा दीजिए या कुछ भी लगा दीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये सेक्शन खत्म हो रहा है तो दूसरा सेक्शन शुरू होने वाला है। ठीक। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आर वेरी यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग योर presentations। So, is there any doubts or any questions related to whatever we have discussed now? Any questions? Any questions? सर एक चीज पूछनी थी, वो जो आप हेलो हाँ जी, बोलिए सर। हेलो सर, वो जो आप हाँ जी, बोलिए सर। कन्वेंशन चैम्बर और दूसरा चैम्बर के बारे में बता रहे थे, हाँ हाँ उसमें आपने या कई 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 जगह आपने जो ये मार्क किया है ये ब्लू कलर से कर दिया है, तो हम हाँ भी हाँ। ब्लू कलर यूज कर सकते
सकते हैं क्या कर सकते हैं, अपनी डार्क स्लाइड ब्लू में? यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड वाइट है, डार्क ब्लू में यूज कर सकते हैं या ब्लैक कलर में यूज कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, सो मेन मेन चीज होता है कि जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का जो कॉम्बिनेशन है ना, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, अच्छा। और जिससे क्लैरिटी ओके एकदम सर। रहे। थोड़ा सा भी ऐसा नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड के साथ आपका फोरग्राउंड अगर मिक्स होते जा रहा है तो फिर वो क्लैरिटी खराब हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, आप ऑब्जर्व करेंगे कि हम अपने लैपटॉप में जैसे देखते हैं, वही चीज अगर आप प्रोजेक्टर में चलाना शुरू करें ना, तो कलर में चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि हाँ प्रोजेक्टर सर, का आ जो जाते हैं। क्वालिटी है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे दिखेगा वो। तो अगर आपने सिर्फ एग्जांपल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने येलो कलर में यूज़ किया है, अब ये येलो कलर जो है, जैसे आप प्रोजेक्ट करना शुरू करेंगे हो सकता है इसका कलर चेंज हो जाए, ये हो सकता है लाइट येलो बन जाए, या तो दूसरा लाइट कुछ। बन जाएगा सर। हाँ, हो जाता है, ऐसा होता है। तो जो प्रोजेक्टर चलो। का क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ब्लैक एंड व्हाइट एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो प्रोजेक्टर में ठीक ही दिखेगा, चाहे वो कैसा भी प्रोजेक्टर हो, ब्लैक को ब्लैक ही दिखाएगा, व्हाइट को व्हाइट ही दिखाएगा, उसमें कलर चेंज नहीं ठीक है होगा। सर, ब्लैक एंड तो व्हाइट ही बनाएंगे सर। हाँ, वो सबसे बेस्ट होता है। या तो आप व्हाइट के ऊपर डार्क ब्लू वगैरह यूज कर सकते हैं, डार्क ब्लू भी ऑलमोस्ट लाइक ब्लैक ही जैसे काम करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता ठीक है है। सर। ग्रीन कलर्स में दिक्कत होता है, ग्रीन कलर्स बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है जब हम प्रोजेक्शन में ले आते हैं उसको, प्रोजेक्टर्स के थ्रू जब उसको ओके। प्रोजेक्ट करते हैं, ग्रीन येलो इस टाइप के कलर्स बहुत ही अजीब से दिखने लगते हैं उसमें। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सो एनी मोर डाउट्स? होपफुली ये आपको हेल्प करेगा। इसका जो है, दैट दीज आर द वेरी बेसिक, कॉमन सेंस भी है काफ़ी इसमें, आप ऑब्जर्व करेंगे काफ़ी कुछ कॉमन सेंस भी है। और ये रियली हेल्पफुल होता है। ये जब हम प्रेजेंटेशन बनाने बैठते हैं तो कई बार मिस कर जाते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा टू रिमेंबर द पॉइंट्स। तो इफेक्टिवली आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनेगा इससे, आई एम श्योर। चलिए देन विल प्रोसीड टू अटेंडेंस। अभी मैं अटेंडेंस